السلام علیکم۔ ناول ملالکل از قلم ایمن اکمل ایپیسوڈ 4۔ جس چیز پر جس انسان کا حق ہوتا ہے وہ اس کی ہو کر ہی رہتی ہے۔ ہر چیز اپنے اصل حقدار تک پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ وہ پھول بھی جس کے لیے بنائے گئے تھے اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ جویریہ رابعہ کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں چھری لے کر میوے کاٹ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور اس نے رابعہ سے پوچھا، امی ہمارے ساتھ والے گھر میں کوئی شفٹ ہوا ہے کیا؟ رابعہ تھوڑی دیر کے لیے کام سے ہاتھ روک کر بولی، پتہ نہیں بیٹی، وہ گھر تو ایک عرصے سے بند تھا، ویسے بھی میں زیادہ باہر نہیں نکلتی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہاں ایک خاتون اور شاید ان کے شوہر آج ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ جویریہ کا چہرہ تجسس سے بھر گیا۔ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، رابعہ تھوڑی بے دھیانی سے بولی۔ جویریہ نے ہاتھ میں کاٹا ہوا میوہ چھوڑ کر قریب آ کر کہا، امی میں ان کے گھر کھیر دے آتی ہوں، پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اب وہ اپنے کام سے بے نیاز ہوتی رابعہ کے قریب آ کر کھڑی اجازت طلب کرنے لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں دے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کوئی جواب دیتی وہ جلدی سے کھیر کے لیے برتن نکالنے لگی اور رابعہ نے خاموشی سے اپنے کام کی طرف نظریں گھما لی۔ اس لڑکی کو بھلا وہ روک سکتی تھی؟ عموماً وہ زیادہ کسی کی زندگی میں انٹرسٹ نہیں لیتی تھی، مگر وہ وہاں جانا چاہ رہی تھی تو یقیناً کوئی خاص وجہ تھی اس کے پیچھے۔ کہتے ہیں بعض اوقات انسان کو خود کو پہچاننے کے لیے کسی کی ضرورت رہتی ہے، کوئی ایسا ہماری زندگی میں آئے جو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے۔ گمراہ لوگوں کے لیے اللہ بہت سے وسیلے بنا دیتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے انتظار میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ہمیشہ یہ خواہش کہ کوئی آئے جو جینا سکھائے، وقت حالات سے لڑنا سکھائے، لڑکھڑا کر سنبھلنا سکھائے۔ زندگی کے ہر مقام پر کسی کا منتظر رہنے سے بہتر ہے گر کر چلنا سیکھ لیا جائے۔ دھوپ کے نرم گوشے میں جویریہ ہاتھ میں ٹرے لیے سامنے والے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ دھیرے سے دستک دینے ہی والی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم انکل، میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آپ لوگ آج ہی شفٹ ہوئے ہیں نا؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس کا لہجہ بے ساختہ تھا، جیسے کہ اس کی زبان سے کوئی بات بے اختیار نکل گئی ہو۔ پھر وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گئی، پھر شرمندہ ہو کر بولی، در حقیقت میں یہ کھیر لائی تھی۔ امجد صاحب نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹی اندر آؤ۔ جویریہ نے ہنس کر اندر قدم رکھا اور رمشا بیگم جو صفائی کر رہی تھی باہر آ گئی۔ جویریہ نے اپنا تعارف کروایا اور دونوں کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ اس وقت چائے کے کپ ہاتھ میں لیے وہ سب لان پہ بیٹھے تھے۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ جویریہ نے وہ لمحہ توڑا۔ آپ قرآن ٹیچر ہیں، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ دینی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، میں بھی آپ کے اسکول آنا چاہوں گی۔ ہدایت لینے؟ رمشا بیگم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا میں غفلت میں ہوں؟ جویریہ کا چہرہ الجھن سے بھر گیا۔ انسانوں کو غفلت کے شکار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، امجد صاحب نے دھیما سا جواب دیا۔ جویریہ خاموش ہو گئی۔ الفاظ کے پیچھے چھپی گہرائی اسے سمجھ نہ آئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ سوچنے کی بات ہے۔ آپ لوگ الگ رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، یعنی بچوں کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے پوچھا۔ امجد صاحب نے رمشا کی طرف دیکھا جن کا چہرہ تھوڑا سا افسردہ تھا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے بیٹا۔ یہ سن کر جویریہ کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرا۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی بغیر اولاد کے گزار دی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں سے اس قدر مخلص ہوتے ہیں، اور ایک میرے بابا تھے جنہوں نے بیٹی ہونے کے باوجود بھی شادی کر لی تھی۔ اس کا تلخ ماضی ذہن کے پردوں پر ابھرتا اسے اذیت کا شکار کر رہا تھا۔ کیا ماں باپ کا سہارا صرف بیٹے ہوتے ہیں کیا بیٹیاں نہیں ہو سکتی؟ بے ساختگی اس کے منہ سے نکلا۔ بیٹا، اولاد برابر ہوتی ہے۔ مخلصی کی بات ہو تو بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ وہ والدین کی محبت کو دل سے سمجھتی ہیں کیونکہ وہ جدائی کی اذیت بھی محسوس کرتی ہیں۔ رمشا بیگم نے مسکرا کر کہا، اگر آپ کے پاس بیٹی اور بیٹا دونوں ہوتے تو آپ کس کو ترجیح دیتے؟ جویریہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، بیٹی ہونا خوش نصیبی ہونے کی بات ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹی کے آنے سے گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ رمشا بیگم نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امجد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، ہم نے زندگی کا تقاضا سمجھا، اگر اللہ نے بیٹی دی تو شکر، نہیں دی تو راضی ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزوں کی قدر تب آتی ہے جب وہ ہمارے پاس نہ ہو، اور جب حاصل ہو جائے تو اکثر ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ انہوں نے جویریہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہ آنکھوں میں نم لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اب یہ اجنبی لوگ اس کے دل میں گھر کر چکے تھے۔ اب سے میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو اس سے اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جویریہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
कुछ लम्हे खामोशी के बाद दोनों मुस्कुराए और रिमशा बेगम ने उसे अपने सीने से लगा कर कहा, इतनी प्यारी बेटी वाकई अल्लाह की रहमत है। हम खुश नसीब हैं कि तुम हमारी बेटी कहलाओ। अमजद साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और जवेरिया के आंसू उनके प्यार में खिल उठे। वो सोच रही थी कि कभी कोई पराया भी इतना प्यार कर सकता है। उसे तो वो प्यार सिर्फ अपनी माँ से मिला था और इससे पहले कभी किसी ने उससे इतनी मोहब्बत नहीं दी थी। जवेरिया की जिंदगी में मोहब्बत के नए रंग भर गए थे। जो दर्द था वो आहिस्ता आहिस्ता शिफा पाने लगा था और वो जान चुकी थी कि हकीकत ताल्लुकात वो हैं जो दिल से जुड़ जाएं, चाहे वो रिश्ते खून के हों या दिल के। जवेरिया ने गहरी सांस लेकर पूछ ही लिया, सोच रहा हूँ शादी कर लूं। इलियास ने कंधे उचकाए जैसे जिंदगी के सबसे अहम फैसले को मामूली सी बात बना दो। उन अल्फाज का असर जवेरिया के चेहरे पर वाज़ेह था। नमी आंखों तक पहुंची, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। अच्छा फैसला है, उसने नजरें चुरा कर कहा और चलने लगी। इलियास ने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा और अगला बार चुपके से किया, बस आपकी इजाजत चाहिए। जवेरिया ठटक गई। मैं समझी नहीं। इलियास उसके सामने, बिल्कुल सामने था। तो क्या आप मेरे सामने पर्दे के पीछे घूंघट ओढ़े बैठकर 3 बोल बोलना चाहेंगी? जवेरिया का दिल लरस उठा। अभी वो फकत अंदाजे लगाती थी कि इलियास को भी शायद उससे मोहब्बत है, मगर ये तो खुला ऐलान था। ये तो ख्वाब से भी ज्यादा हसीन हकीकत थी। आंखों से आंसू चुपके से बह निकले, लबों पर मुस्कुराहट आहिस्ता से खिली। जवाब लफ्जों में नहीं आया, खामोशी बोल उठी। इलियास को उसका जवाब मिल गया था। उसके चेहरे का एक एक तासुर चीख चीख कर कह रहा था कि उसे इलियास हाशिम से बेपनाह मोहब्बत है। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। इलियास ने चंद कदम का फासला बढ़ाया और मुस्कुरा कर कहा। जवेरिया ने सर उठाया, आंखें अब भी नम थी। लेकिन लोगों को मुझे रुलाना पसंद है। तुम्हें रुलाने वालों में इलियास हाशिम का नाम कभी शामिल नहीं होगा। इलियास ने पलटकर जाते हुए कहा। वो कहकर वापस अपनी गाड़ी में बैठा। वो जा चुका था। गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी, मगर जवेरिया अब भी वहीं खड़ी थी। उन दोनों को अपनाइयत और अजनबियत में फर्क करना ही नहीं आ रहा था। कभी आप कहकर एहतराम को कायम रखते तो कभी तुम कहकर खुद को खुश करते थे। दोपहर की धूप खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। लाउंज में खामोशी छाई थी। सिर्फ बर्फ पलटने की मध्यम आवाज और गाहे बगाहे इकरा की हल्की सरगोशियां फिजा में पिघल रही थी। जवेरिया सर झुकाए कोहनियां मेज पर रखे किताबों पर झुकी थी। उसकी भूरी आंखों में यकसुई तो थी, मगर दिल का आंगन किसी और ख्याल से रोशन था। तुम थक गई होगी ना? इकरा ने अचानक सर उठाते हुए कहा। रुको, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं, जवेरिया ने हल्के मगर फैसला कुल लहजे में जवाब दिया। ना ही थकी हूँ और ना ही कुछ खाना है। इकरा ने हल्की सी सांस भरी। उसे मालूम था जवेरिया अगर एक बार इनकार कर दी तो कोई ताकत उसे कायल नहीं कर सकती। वो जैसे ही वहां से गई, जवेरिया की आंखें फिर खाली खला में कुछ ढूंढने लगी, शायद अपने अंदर की बेचैनी को। सुना है शादी से पहले लड़कियों को ससुराल नहीं आना चाहिए। अचानक एक शनासा मगर दिल धड़काने वाली आवाज उठी। इलियास इकरा की खाली जगह पर बैठा, अपनी निगाहों का तमाम वजन जवेरिया पर डाल चुका था। जवेरिया की पलकें झुक गईं। ये वो नजरें थी जो हमेशा उसे कमजोर करती थी। क्या पढ़ रही हो? इलियास ने सामने रखी किताब की जानिब हाथ बढ़ाया तो जवेरिया तेजी से खड़ी हो गई। मुझे पानी चाहिए, मैं किचन से ले आती हूँ। उसका लहजा हिचकिचाहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इलियास आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसे परख रहा हो। मगर पानी तो यहाँ मौजूद है। उसने साइड टेबल की तरफ इशारे किया जहाँ जग रखा था। जवेरिया की पलकें बंद हो गई, जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। दिल की धड़कन जैसे पसलियों से टकरा रही हो। सांस की रवानी बेतरतीब थी। लेकिन इससे पहले कि कुर्बत कोई और रंग इख्तियार करती, एक करखत आवाज ने सारा मंदिर तोड़ दिया। इलियास, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और इकरा कहाँ है? आसमा बेगम की आवाज में गुस्सा कम और निशाना ज्यादा था, और वो निशाना जवेरिया पर था। जवेरिया ने फौरन चंद कदम पीछे हटते हुए अपने और इलियास के दरमियान फासला कायम कर लिया। मॉम, क्या हुआ? इलियास के माथे पर हैरत की लकीरें थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आसमा ने उसे नजरअंदाज करते हुए जवेरिया से पूछा। जवेरिया घबरा गई। अल्फाज गुम थे, मगर इकरा बर वक्त आ गई। मॉम, मैंने बुलाया था इसे, मुझे पढ़ाई में मदद चाहिए थी। तो तुम्हें यूनिवर्सिटी क्यों भेजा था? आसमा ने एक तीखा सा तंज उछाला। जवेरिया खामोश खड़ी, सब सुन रही थी। उसका सर झुका हुआ था, आंखों में नमी थी, मगर होंठ बंद थे। दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान पर मोहब्बत ने बंद बांध रखे थे। यही तो मोहब्बत की बेबसी है, चुप रहकर भी चीखना। मैं चलती हूँ इकरा, वो इतने खामोश अंदाज में कहकर चली गई जैसे अपने वजूद को समेटकर किसी खला में रखती हो। जवेरिया जा चुकी थी, मगर माहौल में उसकी खामोशी की गूंज भागी। इलियास की बर्दाश्त जवाब देगी थी। मॉम, आप कैसे बात कर रही थी उससे?
आपने देखा कि वो कितनी हर्ट हुई। तुम अपने काम से काम रखो इलियास, फजूल चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आसमा ने सख्ती से जवाब दिया, मगर इलियास रुका नहीं। मॉम, वो कोई फजूल चीज नहीं, वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। न जाने क्यों उसे जवेरिया की आंखों में आंसू देखकर तकलीफ हुई थी। आसमा के चेहरे पर हैरत की झील झील पेल गई। जानते हो क्या कह रहे हो? जी मामू, जी मॉम, वो मासूम सी लड़की है, आपका रवैया उसके साथ इतना तल्ख क्यों था? उसकी अगली बात पर आसमा ने दाद देती नजरों से उसे देखा और ज़ेरे लब दोहराया, मासूम? तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए या उससे मिले हुए? वो पुरसुकून लहजे में दरियाफ्त करने लगी। किसी तीसरे की वजह से वो बेटे से सख्त अल्फाज क्यों कर बोलती? इलियास को ये सवाल बहुत अजीब लगा था। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और वो एक अरसे से इकरा की दोस्त है। यहाँ आना जाना उसका कब से है? मतलब वो इससे पहले भी मिलता था। उसके जवाब पर आसमा का जहन मुख्तलिफ वसवसों की जद में आ गया। इकरा मुतहैयर खड़ी, कभी भाई को देखती तो कभी माँ को, जिनके दरमियान कशीदगी की वजह उसकी दोस्त ठहरी थी। तुम मुझे अपने इरादों से आगाह करना चाहोगी? आसमा ने सीने पर बाजू लपेटे कदरे रोप से पूछा। इलियास भी मजबूत तासुरात के साथ खड़ा उन्हें देख रहा था, जैसे अपने फैसले पर अटल हो। मैं इससे शादी करूंगा, जबकि जवाब आसमा की तवक्को के मुताबिक था। फिर भी वो अपने बदलते तासुरात छुपाने में नाकामयाब गुजरे। इलियास के लहजे में आसमा को बहुत कुछ बावर करवा दिया था। उसने ये नहीं कहा था कि मुझे उससे शादी करनी है, आप मेरा रिश्ता लेकर जाए। उसने कहा था मैं उससे शादी करूंगा, यानी हर हाल में उससे शादी करेगा, चाहे आसमा माने या फिर ना माने। वो इजाजत नहीं मांग रहा था, वो फैसला सुना रहा था। मेरे बगैर। इलियास कुछ पल के लिए सरासीमा हो गया। वो लड़की उनके स्टेटस की थी, ज़हीन थी और खूबसूरत भी थी, तो आखिर आसमा के इनकार की वजह क्या थी? ये आपका फैसला होगा, जो आपको मुनासिब लगे आप वही की। वो आसमा की काटदार बात का जवाब उसी के लहजे में देना नहीं चाहता था, मगर उसे ऐसा करना पड़ा। आसमा का दिमाग भग से उड़ा, यानी वो उसका बेटा होकर उसे ऑप्शन दे रहा था। ये बात तो उसके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। पहले बेटी की उसके लिए पसंदीदगी और फिर बेटी की उसके लिए मोहब्बत। वो जितना भी अपने बच्चों को इस लड़की से दूर रखना चाहती, उसके बच्चे मजीद उसके करीब तर हो जाते। तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, आसमा बड़े जब्त से बोली थी। इससे अच्छी अगर कोई हुई भी अब मुझे नहीं लगेगी। मेरा दिल दगाबाज नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरे पास एक से एक अच्छी लड़की का रिश्ता है तुम्हारे लिए, और तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसकी अपने घर में भी कोई इज्जत नहीं। आसमा भड़क की उठी थी। इकरा उसके अंदाज पर बेसाख्ता घबरा गई। इकरा को इलियास के मुंह से जबीरे के लिए इजहार मोहब्बत सुनकर ज्यादा धचका नहीं लगा था, लेकिन वो इस बात पर उसे मलामत जरूर कर रही थी कि उसने गलत वक्त पर बात छेड़ी। उसे इलियास से इस कदर अहमकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि वो निहायत सोच बचार से मामला सुलझाएगा। इज्जत ही तो देना चाहता हूँ मोम। उसके लहजे की ठंडक भी आसमा के अंदर भड़कती आग के मानंद नहीं कर पा रही थी। इकरा बस अफसुर्दा सी खड़ी उन दोनों की तल्ख कलामी सुन रही थी। हरगिज़ नहीं, वो मुंह फट बदलिहाज लड़की कभी भी इस घर की बहू नहीं बनेगी, आसमा तैश से बोली थी। उसके लहजे से बरसती नफरत की आग की वजह इलियास को समझ नहीं आ रही थी। हर माँ की तरह वो भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला करना चाहती थी, और जवेरिया उनकी नज़र में एक ऐसा फैसला थी जो उनके बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगी। उनके मुताबिक मोम वो मुंह फट नहीं हाजिर जवाब है। इलियास को अपनी माँ के जवेरिया के बारे में ख्यालात सुनकर अच्छा नहीं लगा था। आसमा बेगम ने तेजो तन नजरों से उसे घूरा। वो जवेरिया की बदजुबानी को हाजिर जवाबी का नाम दे रहा था, इसलिए आसमा को पसंद नहीं था जवेरिया का उसके घर में आना जाना। न जाने कब उस लड़की ने उसके बेटे को अपने जाल में फांस लिया, मगर वो हरगिज़ उसकी जिद के आगे घुटने नहीं टेकेगी। हर माँ की तरह उसे भी यही लगता था कि बेटी की माँ है तो कुछ भी कर सकती है, मगर शायद वो ये भूल रही थी कि उसकी अपनी भी एक बेटी है। बेटी वालों को दूसरों की बेटियों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या पता आपके कीचड़ में फेंके हुए पत्थर से चंद कतरे कीचड़ के आप पर भी गिर जाए। अम्मी भाई, हम इस बारे में बैठकर बात करेंगे। उनके तल्ख कलामी को इख्तिताम तक पहुंचता देख इकरा जल्दी से आगे हुई। इलियास मजीद एक भी लम्हा वहां रुके बगैर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और आसमा इकरा को कहर आलूद नजरों से देखते अपने कमरे की जानिब रवाना हुई।
नरम और मुलायम सोफों से आरासा वसी लाउंज में खुशगवार सी गहमा गहमी थी। रोशनियों का हल्का सा अक्स फानूस से छन कर नीचे फर्श की कालीन पर झलमला रहा था। सब अहले खाना हंसते बोलते एक दूसरों की बातों में महव थे, लेकिन इन सब के दरमियान हमजा की नजरें बार बार दरवाजों, राहदारियों और सीढ़ियों की जानिब थी। गोया उसकी निगाहें किसी चमकते हुए सितारे के मतलाशी, किसी मानूस से मुस्कुराहट, किसी खास मौजूदगी के मुंतजिर। फुप्पो जवेरिया कहाँ है? उसने आहिस्तगी से पूछा जब जुनैद आफिंदी मोबाइल का कॉल पर बाहर चले। किचन में है, चाय बना रही है। मैंने मना किया था मगर वो कह रही थी कि सबके लिए चाय वो खुद ही बनाएगी। राबे ने एक दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हमजा के लबों पर एक पुरमुसर्रत तबस्सुम आया। अच्छी बात है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और थोड़ी जिम्मेदारी उस पर भी डालनी चाहिए। राबे उसके अंदाज पर बेसाख्ते ही हंस पड़ी जब वो एक लम्हे को रुक कर बहुत शायदगी से बोला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी से चंद पल मुलाकात कर सकता हूँ। राबे ने आंखों में तंबिया लिए गहरी नजर से उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक माँ से उसकी बेटी से मिलने की इजाजत मांग सकते हो? हमजा की आंखों में चमक उभरी और लहजे में शरारत घुल गई। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप फूफो जान, मुझे भला इजाजत की क्या जरूरत है? मुझे कौन इनकार कर सकता है? वो लापरवाही से कहता हुआ सोफे से उठा जैसे जीत का यकीन उसे एतमाद से भर चुका हो। राबिया ने हैरत से उसे जाते देखा और फिर उसके अंदाज, अल्फाज और आंखों में छुपी संजीदगी को सोचकर मुस्कुरा उठी। एक माँ के दिल से निकली हुई दुआ उस मुस्कुराहट में शामिल हो गई। जवेरिया वाकई खुश नसीब है क्योंकि हमजा उसकी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा इंतखाब था। चाय की केतली के सामने खड़ी वो जैसे किचन में नहीं किसी और ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। उसकी आंखों में किसी अनजाने ख्याल का अक्स था, जैसे दिल के पर्दे पर कोई याद किसी हल्की खुशबू की सूरत उभरी हो। मगर वो ये नहीं जानती थी कि इस वक्त बिल्कुल उसके पीछे कोई और भी खामोशी से खड़ा था। क्या कोई ऐसा भी था जो काम के दौरान भी जहन पर सवार होकर काम में रुकावट बने? सरगोशी जैसे ही मध्यम आवाज उसके करीब से उभरी। वो चौंक कर बढ़ी। घबराहट से उसकी सांसें उखड़ गई और नजरें फौरन हमजा के चेहरे से टकराई। हमजा, तुम कब आए? कुछ चाहिए था तुम्हें? वो बेसाख्ता दुपट्टा संभालने लगी जो बेख्याली में कंधों पर ढलक आया था। हमजा ने उस लम्हे को कैद कर लिया था। एक औरत जब शर्म से नजरें झुकाती है तो वो लम्हा मर्द के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता। जब तुम अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। हमजा के जुमले पर वो खफीफ सी शर्मिंदगी से लब काटे लगी। वो चाय बनाने में मसरूफ हो गई और हमजा बेनियाजी से स्लेब से टेक लगाकर खड़ा हो गया। क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी, ट्विटर ने मुख्तसर जवाब दिया और सवाल पलटा, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? पहले की तरह। अचानक जवेरिया को याद आया कि उसने हमजा को एक स्केच बनाने का कहा था। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें अपना स्केच बनाने को कहा था ना। तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो और एक आम से लड़की का स्केच नहीं बना सके। हमजा ने गहरी नजरों से उसका चेहरा देखा और दिल में सोचा, आम सी लड़की, इस आम सी लड़की जैसे चेहरा, इस जैसा रंग, इस जैसी मासूमियत उसे आज तक कहीं और नहीं मिली थी। वक्त नहीं मिला अभी, लेकिन मैं बनाऊंगा, वादा रहा। उसके वादे पर जवेरिया का चेहरा कुछ और बुझ गया। पता है, मुझे तो अपना स्केच दिखाने का शौक है सबको, मगर किसी और को देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। उसके बरक्स तुम अपने ही बंदे हो, एक चाय की कप पर मान जाओगे। जवेरिया हाथ झुला झुलाकर कह रही थी और हमजा की हंसी उसके लहजे की शौक़े पर बिखर गई। छोड़े ये स्केच, मैं तुम्हें एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना कर दूंगा। बल्कि हमजा कुछ और कहने लगा था मगर जवेरिया ने चुटकी काटी। एक काम करो, तुम ना अपने स्टाइलर को किसी डब्बे में बंद करके अलमारी के ऊपर रख दो, कहीं खत्म ना हो जाए। हमता फेरा साहब वो खुफगी में भी दिल जीतने का फन रखती थी। अच्छा पक्का वादा, जब मेरी शादी होगी ना तुम्हें तुम्हारा स्केच बनाकर गिफ्ट करूंगा। अमूमन तो मेरी शादी पर मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन तुम मुझसे मुख्तलिफ थोड़ी हो। जवेरिया कुछ लम्हे को साकित हुई, उसके लहजे की जज्बातियत महसूस करते लहता फिर भर को जवेरिया के हाथ रुके थे। फिर उसने धड़कते दिल के साथ नजरें उठाकर उनसे आंखों में झांका जो बहुत कुछ बयान कर रही थी। बुरी आंखें से आंखों की चमक देखते ठहर सी गईं। दिल के अंदर किसी अनजाने से खौफ ने जन्म लिया था। दोनों की आंखें बहुत गहरे राज दफन किए हुए थी जिनके अफशा होने पर बहुत सी जिंदगियां बदल सकती थी। यानी आजकल शादी के बारे में सोच रहे हो? लड़की ढूंढ ली? हमजा की आंखों में एक चमक उठी। लड़की ने खुद ही जिंदगी में जगह बना लिया। ये सुनकर जवेरिया के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। नजरें उसके चेहरे पर अटक गईं। दिल में अनजाने जज्बात की लहरें उठने लगीं। पहली बार वो हमसे से बात करके उलझन में मुब्तला हुई थी। अपनी शादी पर तुम्हें स्केच दूंगा, तब तक इंतजार करो। नहीं चाहिए फिर?
तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा, वो मुंह फुलाकर बोली। मैं श्योर हूँ वो बहुत खुश होगी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर तो पहली लड़की होगी, जवेरिया ने कहा और हमजा नजरें झुकाकर खामोशी से मुस्कुरा दी। काश वो जानती कि वो पहली लड़की, वो खुशकिस्मत वही थी। हाँ, मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की। हमजा की आवाज में सच्चाई और जज्बात की आमेजिश थी। जवेरिया ने नजर उठाकर उसकी आंखों में झांका, वो फौरन झुका ली। वो निगाहें आज हद से ज्यादा बेकरारी थी। तुम चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ, उसने खुद को संभालते हुए कहा। हमजा खामोशी से बाहर चला गया, मगर दरो दीवार अब भी उनकी कही बातों के गवाह थे। आज हमजा की निगाहें उसे बहुत कंफ्यूज करेंगी। आज से पहले उसे अपनी माँ के अलावा महज एक यही इंसान अपने लिए मुखलिस लगता था, क्योंकि उसने हर कदम पर उसका साथ निभाया था, उसकी हर मुश्किल को आसानी में बदला था। मगर वो महज उसका दोस्त था, जिसे वो कितने ही बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेती थी, जिससे बात करके उसका दिल हल्का हो जाता था। लेकिन लड़का लड़की की दोस्ती मोहब्बत है ना, बदले ऐसा मुमकिन कब है। कभी किसी एक की तरफ से पहल हो जाती है और दूसरी अपना मकाम खो देती, क्योंकि दोस्ती जब मोहब्बत का रंग ओढ़ ले तो ना वो दोस्ती रहती है ना मोहब्बत। जवेरिया के अंदर पहली बार ये सवाल उभरा था, क्या दोस्ती और मोहब्बत के बीच की लकीर वाकई इतनी बारीक होती है, और जब वो लकीर मिटने लगे तो क्या रिश्ता कायम रह पाता है। टू बी कंटिन्यूड।